Coming. कैसे हैं आप? So introduce yourself. So my name is Kriti Goyal. Basically, I belong to Jaisal district, Shri Ganganagar, Rajasthan. I am postgraduate in chemistry. I have done my graduation and post-graduation both from Punjab University, Chandigarh. I have done my schooling from Rajasthan Board. I have also cleared CSIR NET with All India rank 10th. I have 3 years of working experience with Tutor Vista Private Limited as an international tutor. And I love to do yoga as well as teach yoga. That's why I am yoga instructor also in Bharatiya Yoga Sansthan. You are here for post of PGT chemistry. Yes, sir. So I'm gonna ask some chemistry questions. Okay, sir. Tell us something about Schrodinger equation. Schrodinger equation is double wave equation, double differential equation, that is del square psi over del x square plus del square psi over del y square plus del square psi over del z square plus 8 pi square m over h square e minus v. Nice. So ये equation से क्या use है? What is the use of this equation? To find the probability of electron in nucleus, मतलब इलेक्ट्रॉन की probability find करने के लिए हम ये equation use करते हैं. Good. And what is the shape of XeF4? XeF4. XeF4. It's a square bipyramidal. वैसे स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, लेकिन अगर हम हाइब्रिडाइजेशन से देखें तो इट्स स्क्वायर बाइपिरामिडल. एक ही शेप क्या होगी? स्क्वायर बाइपिरामिडल. यस सर, स्क्वायर बाइपिरामिडल. CH3CO माइनस आपको गिवन है. CH3COO माइनस. ओके, एसीटेट आयन. एसीटेट आयन. आपको इसकी pH कैलकुलेट करनी है. 0.1 मोलर कंसंट्रेशन जो है. pH अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो pH इक्वल्स टू CH3COO नेगेटिव की करनी है तो हम pKb pKa यूज करके हम इसकी pKa किसका? एसिटिक एसिड का. तो 10⁻⁵ गिवन हो गया. लाइक इसका हम करेंगे pH KW over Ka से मैं Kb फाइंड करूंगी. आफ्टर दैट Kb यूज करके कंसंट्रेशन ऑफ लाइक CH3COO नेगेटिव वाटर से रिएक्ट करेगा विद फ्रॉम CH3COOH OH नेगेटिव आयन. उसके बाद मैं उसको Kb का फॉर्मूला यूज करके OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन फाइंड करूंगी. आफ्टर दैट आई विल कैलकुलेट POH एंड POH से फिर 40 माइनस POH करके pH फाइंड आउट करूंगी. ओके. So according to VBT, Cn minus is what type of ligand? According to Cn minus is ambidentate ligand. Ambidentate ligand. And what about its nature? It is a strong ligand or weak ligand? It's a strong ligand. So how can you say that it is a strong ligand? सबसे पहले तो इसमें कार्बन डोनर एटम है, एज वेल एज नाइट्रोजन भी है, लेकिन कार्बन डोनर एटम है तो कार्बन डोनर जो एटम है वो सिग्मा डोनेशन ज़्यादा करता है. दैट्स व्हाई इट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड. एंड ऑल्सो इन CFSC अगर हम देखें तो CFSC में ये डायल जीरो जो है इसका ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी. दैट्स व्हाई इट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड. CFSC is a concept of VBT. नोट CFSC इज कांसेप्ट ऑफ CFT क्रिस्टल फिल्टर. तो मैं बोला VBT के अकॉर्डिंग इसका सिग्मा डोनेशन ज़्यादा है. दैट्स व्हाई इट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड. And what about Cl minus? Cl नेगेटिव इज ए वीक लिगेंड. उसका भी तो वो सिग्मा डोनेशन ही होगा. सिग्मा डोनेशन है बट उसका हैलोजन है वो मेटल एटम से इतना कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता ड्यू टू बिगर साइज देन Cn नेगेटिव. और Cn नेगेटिव में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आने से कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड आने से कार्बन इफेक्टिवली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है. What are the limitations of VBT in chemical bonding and in coordination compounds? VBT in chemical bonding and in coordination. In coordination compound through VBT we cannot find out basically strong field and weak field हम VBT के through नहीं बता सकते. And in chemical bonding में VBT का find out hybridization.
Kirti, you are going to be a KVS teacher for PGT chemistry. And Do you have any selected topic you want to teach us? yes, sir. That's your marker in the system. Just please proceed. Good morning, student. How are Good morning, ma'am. you all? We are fine, ma'am. Okay, मैं भी ठीक हूँ. जी. That's the black one. Okay. So today's date is 6 Feb. Okay. क्लास है हमारी 12. तो बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. वो है हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे? Coordination compounds. ओके. पहले सुना है कभी कोऑर्डिनेशन के बारे में? नहीं मैम, मैंने तो नहीं सुना. मैम इसमें मैंने कोऑर्डिनेट करके टेस्ट लगाए थे मैम बहुत सारे. अच्छा, क्या कोऑर्डिनेट टेस्ट लगाया मैम आपने? टाइट्रेशन किया था हम दोनों ने मिलके. अच्छा, चलिए ठीक है. तो क्या टाइट्रेशन में क्या किया फिर आपने? मैम 2 सॉल्यूशन थे मैम, एक में कलर आ गया था मैम. अच्छा, क्यों कलर आया पता है आपको? नहीं मैम. नहीं वो नहीं पता. चलिए अब आज हम ये पढ़ेंगे कि क्यों कलर आता है कोऑर्डिनेशन में. चलिए पहले शुरुआत करते हैं. शुरुआत करने से पहले कंपाउंड्स सुना है? कंपाउंड्स के बारे में इंग्लिश वाले सर ने मैडम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाए थे कि जोड़ना होता है. अच्छा. एक सेंटेंस को हाँ, तो जोड़ना. इसमें भी हम केमिस्ट्री में भी ना कंपाउंड्स में जोड़ना ही होता है. हाँ. लेकिन इसमें हम जोड़ते किसको? जैसे इंग्लिश में सेंटेंसेस को जोड़ते हैं ना, हाँ जी. वैसे ही केमिस्ट्री में हम किसको जोड़ते हैं? एलिमेंट्स को जोड़ते हैं. जैसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वैसे ही केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स क्या होते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स. ठीक है. क्यों जुड़ जाते हैं मैम? क्योंकि वो आपस में रिएक्शन करते हैं. अच्छा, ठीक है. ठीक है. जैसे तो अब कंपाउंड्स जो होते हैं ना, तो जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, पानी में जब हम उन्हें डिसॉल्व करेंगे तो उसके बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं सिंपल. आपने सुना है ना नमक, सिंपल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट. क्या फॉर्मूला होता है? NaCl. ठीक है, वेरी गुड. तो जो सिंपल सॉल्ट होते हैं ना NaCl, वो होते हैं सिंपल कंपाउंड. उन्हें जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो ना तो ये क्या करते हैं? 2 टाइप के आयन देते हैं, Na+ और Cl नेगेटिव. तो सिंपल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब आप उन्हें पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको 2 आयन मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. लेकिन इसके अलावा एक दूसरे टाइप के कंपाउंड होते हैं एडिशनल कंपाउंड. एडिशनल, इसमें एक टर्म आ गया ना एडिशन. जोड़ना. एडिशन मतलब कि जोड़ना. जब हम 2 सिंपल कंपाउंड या 2 से अधिक सिंपल कंपाउंड्स को आपस में जोड़ देते हैं ना तो वो क्या हो जाते हैं? आपके एडिशनल कंपाउंड. समझ में आया? एडिशनल कंपाउंड क्या हो गए? जब आपने 2 सिंपल कंपाउंड्स को आपस में जोड़ा. कीर्ति जी, you done your B.Ed from MGSU. ये क्या है फुल फॉर्म ऑफ? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी. महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी. अच्छा, B.Ed में जब आप करते हैं तो we have many type of assessment there, but basically we are going to do 2 type of assessment. One is formative and another is summative. What is the major difference in both? Sorry sir, I don't know. You don't know. Okay, then sir. Tell us something about your hobby. Sir, I love to do yoga. Mm-hmm. Also teach yoga. Does yoga is useful for me or not? If I will do yoga. Yes sir, it's very useful for you also. Okay. If we will select you as a yoga teacher instead of as a PGT chemistry teacher, Yes, then sir. which will you prefer more? Sir, I will prefer for PGT chemistry teacher. Why? क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने एजुकेशन ली है, योगा में मैंने एजुकेशन नहीं ली है. इट्स जस्ट ए प्रैक्टिकल नॉलेज. Such a practical. Okay, tell me something about that about KVS. In 3 to 4 lines. Okay. And I just don't want to know what is that is the KVS is a prestigious organization. That something should be unique. Okay. सर, केंद्रीय विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो 55 साल पुरानी है. 55 इयर्स ओल्ड संस्था है. 15 दिसंबर 1963 को एस्टैब्लिश हुई थी. केवी एक ऐसी संस्था है जिसमें डिफेंस के बच्चे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे और जो कि डिफरेंट स्टेट्स में और स्पेशली रिमोट एरियाज में जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं. अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो इंडियन आर्मी के जो अभी चीफ हैं उनका नाम क्या है? सॉरी सर. जी सर. So
why do you want to join KVS? Why don't you go for the CSI net when you are MSc in chemistry? Sir, I go for CSI. And you have mentioned in your CV that you have already cleared the net. Yes, sir. I have cleared CSI and net, but I don't have any interest in PhD. That's why I didn't. So who asked you for the PhD? Just go as a assistant professor or a lecturer in the college. Sure, they more demand for. They have demand for PhD, not just MSc chemistry. Many colleges don't want PhD guys. They just want the guy who have the knowledge. Sir, in Delhi, I have given 3 to 4 interviews, but they demand for PhD. That's why. But it's mean if they don't demand PhD, then you can go in that colleges for. So in higher education, in government sector, if I get college lecturer post, then maybe I will go. But in private sector, I will not go for it. Okay, thank you so much. Thank you. आप 2 मिनट रुकिएगा ना. Okay, sir. Thank you so much. जी कीर्ति जी कैसा रहा आपका इंटरव्यू आज से पहले तो बताइएगा. लास्ट टाइम से थोड़ा सा नर्वस थी. अच्छा कोई नहीं मतलब वैसे कैसा था आपको क्या लग रहा था. ओवरऑल आई थिंक इट्स गुड. आज सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान गया या यस, हाँ, आज सब्जेक्ट से मतलब मुझसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा करंट अफेयर बल्कि आपको पता चल गया होगा मेरा करंट अफेयर. अच्छा आप इफ यू आर गोइंग टू टेल दैट कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं तो यू नो व्हाट कि आर्मी के जो चीफ है वो इस चीज को ध्यान देखिए. कुछ चीजें होती हैं जो आपका इंस्टेंट हमने कहा था इंटरव्यू आपका इंस्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेके आएगा, बट बेस्ट पार्ट ये था कि आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था. आपको लग रहा है हमें नहीं लग रहा आपने लग रहा आप नर्वस कह रहे तो मेरे को नहीं लगता पहली बार कितने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा थे तो मेरे को अच्छा लगा. नहीं, आज मैंने मतलब जो मैंने देखा कि एक दो जगह मेरा फिर से नर्वसनेस के कारण मतलब आई कांटेक्ट छूट गया था. आई कांटेक्ट बीच में छूटा था. ठीक है आपने लिखा वो आपने ध्यान दिया. आपका लिप्स फंबल करने लगा. ये बहुत बढ़िया था कि आपने खुद भी नोटिस किया. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जो बता रहे हो आपने अलग तरीके से बताया वो भी बेस्ट था पार्ट आपका. दूसरा सब्जेक्ट की नॉलेज में जाके सब्जेक्ट टीचर्स के साथ अगर बात करें तो उन्होंने आपको अबव एवरेज रखा कि हाँ कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो ठीक था. ब्लैक बोर्ड प्रेजेंटेशन अच्छा था, क्लास को कनेक्ट करने का तरीका अच्छा था, बात करने का तरीका अच्छा था, लेकिन क्लास में जो लिख रहे थे वर्ड वो थोड़े विजिबल होते तो और ज्यादा अच्छा होता. उसमें थोड़ा सा आराम से जैसे आप एडिशनल लिख रहे थे ना तो आप एडिशन बोल के फिर आप एडिशनल लिखना शुरू कर. जैसे आपने सिंपल लिख रहे थे एडिशन लिख रहे थे फिर आपने वर्ड ही चेंज करके एडिशनल, तो उसे थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा. बाकी हॉबीज को लेके भी आपने जो बताया वो एक अच्छा था कि आपने योगा था हमने उससे ज्यादा कुछ. तो मेरी तरफ से तो एक बेस्ट आज इंटरव्यू वाला अभी तक के मतलब 4 से 5 नंबर. हाँ एक सवाल यहाँ गड़बड़ हो गया कि जब आपसे सर ने ना पीएचडी वाले सवाल पे पूछा तो आप ना घूम के बोलने लगे ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो मैं चली जाऊँ. इसका मतलब फिर आप केवीएस की इंपॉर्टेंस वहाँ पे कम कर देते हैं. तो मतलब मुझे यही बोलना है कि नहीं आई पीएचडी वाला ये वाला कि अब मैंने सोचा नहीं तो मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में. जैसे सर आपको फंसा रहे थे इस क्वेश्चन से बार-बार, उन्होंने एक ही को बिना पीएचडी के भी ले लेते हैं ये ले लेते हैं, तो आपने आखिरी में बोल दे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा केवीएस की वैल्यू को एक साइड में रखते हुए मतलब वो एक सवाल ऐसा था जिसमें हमें लगता है कि हमारा केवीएस का टीचर ना हमारे हाथों से निकल जाएगा कब जब उसका पीएचडी हो जाएगा. तभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपको पीएचडी होगा तो आप चले जाएंगे. अदरवाइज स्माइल ड्रेसिंग सेंस सब चीजें बहुत बढ़िया था. क्लासिक एकदम परफेक्ट. बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके यार. तो मतलब एक एवरेज स्कोर जो आपका निकल के आता है आपका 40 to 45 के बीच में आता है. ओके ठीक है और आप ग्रेट हो. लास्ट टाइम आई गेट 40 मार्क्स. तो इसलिए आप ना 40 से 45 पे जाते हैं. मेरे लिए तो बहुत जरूरी भी है क्योंकि मेरा लिस्ट में सबसे लास्ट में नेम है. कोई बात नहीं. लास्ट में सबसे नीचे वाला ना ऊपर पहुंचने के लिए चलता है. आगे वाला आपकी देखा नहीं जब गाड़ी आगे रहती है ना तो पीछे वाला टेक ओवर कर सकता है, लेकिन आगे वाले भूल जाते हैं कि पीछे से कोई आ रहा है. That's why I joined Ashen Mantra. मतलब मेरा मेन यही था. अच्छा. बढ़िया से आप बैठिए सर आपको बताएंगे. जैसे सब्जेक्ट में आपकी सही कमांड है और जब मैंने आपसे पूछा XGF4 तो आप अपने आंसर को थोड़ा सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे. आपने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन वो सब आपसे शेप पूछा है, आपने कैलकुलेशन किया माइंड में अच्छा किया, आपने शुरू में आंसर बोला स्क्वायर प्लेनर,
वो आंसर आपका करेक्ट था, लेकिन आप बाद में उससे स्क्वायर बाई पिरामिडल पे स्विच कर गए। क्योंकि स्क्वायर बाई पिरामिडल तो कोई शेप होती ही नहीं है। आप याद करो, स्क्वायर बाई पिरामिडल हम बोलते नहीं, हम तो उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। सॉरी, हाँ वो तो आपको ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं तो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस है। ज्योमेट्री वही थी जो आपने बताया, लेकिन हमने पूछा था शेप, तो आप उसको थोड़ा ना, आपको आता होगा क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आप उस टाइम पे कनेक्ट नहीं कर पाए। वो आज थोड़ा बताया मैंने, थोड़ी सी नर्वसनेस होगी, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन तो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है। हाँ, नेक्स्ट बात, जब मैंने आपसे पूछा CS3CO- के बारे में, तो आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहिए। आपने बोला कि ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, वो तरीका आपका ठीक है। कोई सामने अगर उस तरीके का बंदा होगा वो आपको, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको बताना चाहिए कि ये हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन हो गया डायरेक्टली। आपने बताया ना पानी के साथ रिएक्शन, तो आप डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला उसको बता दीजिए, या हाइड्रोलिसिस का, है ना, समझ गया? हाँ समझ क्योंकि गया, आपने ये 7 माइनस करके, हाँ बिल्कुल 7 प्लस करके, 7 प्लस हाफ भी। हाँ, तो आप ये बाकी सही था। और जो ये आपका जो क्वेश्चन है कि आपने CSI और नेट जो ये सब किया हुआ है, तो आप बताइए कि ये मेरा मतलब अचीवमेंट है, लेकिन मेरा जो है फील्ड की, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, KBS में बच्चों को मतलब मेरे को पढ़ाना है। ये मेरा केमिस्ट्री के प्रति लगाव था कि मैंने जाके नेट सर, और मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी तुम्हें स्क्रोडिंजर बेबी इक्वेशन याद। हाँ, ये याद है, वो तो सही से वो भी पूरी याद है। नहीं सर, मेरा करंट अफेयर E-V के साथ 0 है, मैं तुमसे माइनस नहीं कहूंगी। एक आपने जब वो बोला E- तो वो साइन है, साई में, हाँ हाँ ठीक है। एक बाकी ठीक है, आप ये बता सकते हो कि मैंने जब ये टाइम पे आपने पढ़ाया होगा, तो मैंने मतलब बच्चों को ही पढ़ाया, तो मतलब मेरा उसमें इंटरेस्ट भी काफी डेवलप हो जिस गया। तरीके से आपका ना इंटरेस्ट होने लगना चाहिए कि ये कैंडिडेट हमारे बेस्ट बच्चों को पढ़ाया, बेस्ट कैंडिडेट और बच्चों ने मेरे को लगाव सिलेक्शन है। दिया, और मेरे को जो पूछा, मतलब मेरे को फिर जो वो मैंने पिछले लास्ट टाइम भी बताया था इंटरव्यू में कि मेरा इसीलिए इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था आफ्टर MSc। जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मेरे फर्स्ट बैच में 2 बच्चे मतलब मैरिट में आ गए थे, ऋषि के थर्ड। ये जैसे सर ने बोला ना अचीवमेंट के तौर पे, क्योंकि केमिस्ट्री के आप लास्ट जैसे ना बिल्कुल एकदम लास्ट वाला एक CSR बचा था, तो मैंने वो भी करके देखा, मैंने अचीव किया, तो बट आई स्टिल मोर मतलब कॉन्फिडेंस विद द केमिस्ट्री सर। यही चीज तुम्हें इस वाले क्वेश्चन से बचाएगी। बस ये बढ़िया बचा, ये आपको ये नेट का बचा ले जाएगा, और कि हाँ हमारे पास एक ऐसा कैंडिडेट है जो ज्यादा क्वालिफाइड है शायद, और हमारे बच्चों को अच्छे से देता है। हाँ, थैंक यू सो मच, गुड है, बहुत सर मेरा बढ़िया, कम्युनिकेशन कैसा था? बहुत बढ़िया। मतलब आई कांटेक्ट अगर वो थोड़ा सा ना हिलता ना, तो फिर तो कुछ गड़बड़ ही नहीं थी। जाके बोर्ड वाला सब कुछ बढ़िया था, ओवरऑल बहुत बढ़िया। और एडिशन कंपाउंड्स, नॉट एडिशनल। हाँ, एडिशन था ना, तभी वो एडिशन जो आपने आप हर कहा बार उसी पे डेमो दे रहे हैं, लेकिन उस पे थोड़ा गड़बड़ है। वो मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि उसकी प्रैक्टिस अच्छे हाँ, से। एडिशन है ना, एडिशन है ना वहाँ पे था, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके बाय।